Hello student, I Anshu Sharma welcome you in my new video. Student, the 7th chapter of geography, we already get to know about the settlements, transport, communication and so many things. By this chapter we got to know that human settlement is divided into two parts, permanent settlement and temporary settlement. Permanent settlement where the people settle permanently and temporary settlement where the people live for a short time. And further, the permanent settlement is divided into urban settlement and rural settlement. Urban settlement, it means the residents of the city areas, and the rural settlement is that where the people live in a town or in a village. So the rural settlement is further divided into two parts, compact settlement and the scattered settlement. Compact settlement where the houses are made in a closed area. It means in another way we can say that one or two houses are closed with each other, जहाँ बहुत पास पास घर बने हुए होते हैं, that we can say that is a compact settlement. And scattered settlement is where the houses are made far away, एक दूसरे से दूर दूर डिस्टेंस पे बनाए जाते हैं. So, and after that, after the settlement, we also got to know about the transport. Yeah, in this picture, you can get to know that this is a scattered settlement, जहाँ दूर दूर थोड़े थोड़े दूर घर बने हुए हैं. So this one is the right picture to give you a permanent proper example. And now, in this picture, we are get to know about the transport, means of transport. In a starting, we got to know that there are four means of transport, like airways, roadways, seaways and waterways. So student, in this video we are going to learn the MCQs of this chapter. All in approximately there are 20 or 22 MCQs questions, but even answers are not given here. So what you have to do, you have to give the answers or you can take the help from your book. And also you must to be reminded that after of this chapter, the answers of this chapter are in my blog. So and the link of the blog is given in your description box. So right student, so we are going, let's move towards the first question. Dash is the process of the conveying message to other. What is the process? Communication is speak language and talk. How we can convey our message, right? Next second question is, विच व्हीकल डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट. इनमें से कौन सा व्हीकल है जो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करता है? साइकिल, ट्रेन, बस, कार. बहुत ईजी आंसर्स हैं, आप आराम से कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. वेयर डिड अर्ली मैन लिव? यू हैव ऑलरेडी रेड इट इन 6th क्लास और इन बिगनिंग ऑफ द 7th. वेयर डिड द अर्ली मैन लिव? जो अर्ली मैन थे वो कहाँ रहते थे? ऑन ट्रीज एंड इन केव्स, इन कच्चा हाउसेज, इन पक्का हाउसेज, इन हट्स. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, याक आर फाउंड इन. याक कहाँ मिलता है? याक इज जस्ट एनिमल. तो चाइना, भूटान, तिब्बत. नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड्स. दे कैन बी. जो रोड पर चलते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम इनको यूज़ करते हैं. दे आर द रूरल एंड अर्बन, टेम्परेरी एंड परमानेंट, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड, शॉर्ट्स एंड लॉन्ग. इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू टेल अस द रोड. किस तरह के रोड्स होते हैं जो हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. सेटलमेंट वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट्स, वर्क एंड ट्रेडिंग. दीज एक्टिविटीज़ आर जनरली हैपन. कहाँ होती हैं ये एक्टिविटी? वेयर द पीपल एंगेज दैमसेल्फ इन डूइंग दीज एक्टिविटी. किस तरह के सेटलमेंट में होती हैं? परमानेंट सेटलमेंट में, अर्बन सेटलमेंट, टेम्परेरी सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट. आपको लग रहा होगा ना सारे आंसर्स आपको आते होंगे ये. विच टाइप ऑफ सेटलमेंट इज ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम? विच टाइप ऑफ सेटलमेंट, यानी किस तरह का सेटलमेंट होता है जो वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं? परमानेंट सेटलमेंट, टेम्परेरी सेटलमेंट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज. हैव यू डन इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. द ग्रेट लेक्स आर फाउंड इन. जो बड़ी बड़ी लेक्स हैं वो कहाँ मिलती हैं? साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड इंडिया. लेक्स आप जानते हैं, झील को बोलते हैं लेक्स. तो ये कहाँ मिलती हैं लेक्स? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर. ईमेल मीन्स. You all know that we are in the modern era. We generally use all the gadgets. So what the mean of email here?
electronic mail, electric mail, and enlarged mail, and elastic mail. Right? Question number 10. Andes Mountains is in. Yeah, maybe for this answer you have to see your book. South America, Africa, Australia, North America. Did you get the answer? Right, student, come on the 11th question. The natural conditions for selection of an ideal site are. What are the natural conditions we see to settle here? Favorite climate, availability of water, suitable land, all of these. जब हम कहीं सेटल होना चाहते हैं तो वॉट एवर द थिंग्स वी नीड, क्या चीज़ें हमेरी प्रायोरिटी होती है. क्वेश्चन नंबर 12. एन अर्बन सेटलमेंट इज कॉल्ड. जो अर्बन सेटलमेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हमें पता है ना कि अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट में हमारा डिवाइड कर दिया जाता है सेटलमेंट को. तो अर्बन सेटलमेंट को हम क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, स्कैटर्ड सेटलमेंट और अनमेटल्ड सेटलमेंट. नेक्स्ट, सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल. सेटलमेंट क्या होते हैं? जहाँ लोग बिल्ड टेम्पल्स, लोग घर बनाते हैं. कल्टिवेट ऑन लैंड, बिल्ड देयर होम्स, बिल्ड देयर ऑफिसेज. सेटलमेंट्स क्या होते हैं? जहाँ मंदिर बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं, लैंड कल्टिवेशन होता है यहाँ पे, या ऑफिस बनाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. कायरो इज़ द नेम ऑफ. कायरो क्या है? सिटी है, कंट्री है, सी पोर्ट है, बस स्टॉप है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 15. इन विच एनवायरनमेंट डू पीपल बिल्ड स्लैंटिंग रूफ्स ऑफ देयर हाउसेस. किस तरह के एनवायरनमेंट में जो लोग हैं वो अपनी स्लैंटिंग रूफ्स बनाते हैं? हैवी रेनफॉल वाले एरियाज में, ब्राइट सनलाइट में, हैवी कोल्ड, और नन ऑफ दीज. सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16. नेम द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट्स का नाम बताइए. सिंगापुर, मुंबई, न्यूयॉर्क, ऑल ऑफ द अबव. क्या है इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 17. विच आर द टाइप्स ऑफ द वाटरवेज. विच आर द टाइप्स ऑफ वाटरवेज. वाटरवेज के क्या टाइप्स हैं? टाइप इनलैंड वाटरवेज, सी रूट्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. कौन से इसमें से वाटरवेज के टाइप्स हैं? राइट. क्वेश्चन नंबर 18. ड्वेलिंग मेड ऑफ आइस कोल्ड. जो घर बने हुए होते हैं आइस के, उनको हम क्या कहते हैं? हट, इग्लू, सिल्ट, स्टिल्ट एंड पेंगुइन. क्वेश्चन नंबर 19. वाई डू पीपल मूव फ्रॉम प्लेस टू अनदर प्लेस. एक जगह से दूसरी जगह लोग मूव क्यों करते हैं? फॉर जॉब्स, फॉर बेटर एजुकेशन, फॉर मेडिकल फैसिलिटीज, ऑल ऑफ दीज. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. आप सभी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सभी को आंसर आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मेड ट्रैवल फास्टर. शिप वर्सेस एरोप्लेन. बस से हम बहुत जल्दी जा सकते हैं, शिप से जा सकते हैं, या हम एरोप्लेन से जा सकते हैं. हम किससे जाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन 21. विच इज़ द हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड. सबसे अच्छा हाईएस्ट रोडवे कौन सा है? NH3O, मनाली लेह, ग्रांड ट्रंक रोड, नन ऑफ दीज. क्या है क्वेश्चन? विच इज़ द हाईएस्ट रोडवे. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इनमें से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? रोडवेज है, रेलवेज है, वाटरवेज है, या ऑल ऑफ एबव है? इट्स टू मच इजी स्टूडेंट. ये सब क्वेश्चंस आपको आते होंगे. फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट एट द लास्ट. सारे आंसर सॉल्व करने के बाद, या आंसर्स आर गिवन हियर, यू कैन मैच योर आंसर्स एंड एनालाइज योर नॉलेज दैट हाउ मेनी आंसर्स आर करेक्ट. यहाँ सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप ये अपने क्वेश्चंस के आंसर चेक कर सकते हैं. बट अगेन आई रिमाइंड यू, to get the answers of this chapter you will have to check the answers in description box, क्योंकि उसके आंसर्स मेरे उस पर पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? पहले तो ये सारे आंसर्स आप सॉल्व करिए, फिर वो आंसर्स आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखिए. तो ब्लॉग का उसका लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेक करिए. तो आपके दोनों ही काम हो सकते हैं. MCQs का भी आपका रिवीजन हो जाएगा एंड देन यू कैन ऑल्सो रिवाइज योर क्वेश्चन आंसर. सो इसके आगे हम फिर मिलते हैं. तब तक आप अपने सारे आंसर सॉल्व करिए. गुड बाय स्टूडेंट.